Hello students, welcome to my channel. Today I am going to start the chapter that is life processes. So before going to whatever given in this chapter topic wise, let's have an introduction. So in introduction we will understand that what does life means. What does this life means? Okay. So what is life? Let's start. What is life? Life, it is a system which is self-regulated in which chemical reactions are going on for a cell maintenance, growth, response and reproduction. What does this mean? This means that life is a self-regulated system. Self-regulated means खुद पे खुद अपने आप को सिस्टमैटिक ढंग से चलाने वाला. ओके तो ऐसा ये सिस्टम है जिसपे सब कुछ जो है वो सिस्टमैटिक वे में हो रहा है. In which chemical reaction here means whatever the molecules are present inside our body, they are breaking down, they are combining with others to form new molecules. Okay, in that process many molecules movement are going on. So that means chemical reactions. So these chemical reactions are taking place so that cell can be maintained. Cell, whatever the process means action, systematic action, whatever the systematic action taking place inside the cell, that can be maintained and growth occur in proper way. Cell can grow and it can response means whatever the changes taking place outside the cell or inside the cell, that can be understood by that can be sensitized by the cell, and cell can give rise to its own kind. तो लाइफ मीन्स होता है ऐसा सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम, खुद पे खुद होने वाला सिस्टम जिसमें केमिकल्स की मूवमेंट हो रही है और जिसकी वजह से केमिकल मूवमेंट की वजह से सेल लाइफ के अंदर प्रोसेस हो रहा है. प्रोसेस मीन्स कि सिस्टमैटिक ढंग से होने वाले एक्शंस जैसे, और ये प्रोसेसेस क्या कर रहे हैं, सेल को मेंटेन कर रहे हैं, सेल के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उनको सिस्टमैटिक ढंग से चला रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं. सेल जो है वो सेंस भी कर सकता है और अपने ही जैसे को जन्म भी दे सकता है. तो ऐसे सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम को हम लाइफ कहते हैं. तो लाइफ के अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे, मेंटेनेंस, ग्रोथ, रेस्पॉन्स, रिप्रोडक्शन एंड ऑफ कोर्स द केमिकल मूवमेंट्स. तो दिस इज द लाइफ एंड प्रोसेसेस मीन्स अ सीरीज ऑफ एक्शंस. तो लाइफ को चलाने के लिए सीरीज ऑफ एक्शंस होते हैं. तो दैट सीरीज ऑफ एक्शन वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. सो लाइफ इज रिलेटेड विद द लिविंग बींग्स, जिसमें ये सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम लाइफ है, वैसा जो बॉडी है उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग बींग्स कहते हैं. तो ये भी एक ऑर्गेनाइज सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम है वेयर ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइंस टू फॉर्म अ लिविंग बींग्स एंड दैट ग्रुप ऑफ सेल which forming the living beings have life, and these living beings have all the characteristic of life. What are the life characteristic? Maintenance, growth, response, chemical reactions are going on and reproduction also. So these all characteristic that life had, that should be in the living beings. Then we can say that living being is alive. Now how can we distinguish between a living object or a non-living object? So as I said that life, the living being which has life can grow, but not necessary. A time comes when a living body stop growing in height or in the body growth. Then what does this mean? That person become non-living? No, we can't say. So growth cannot define the living organism. A response can define the living organism is if a organism responds, if he sense the changes occurring around its body, then we can say that object is a living. And it is not necessary that the living organism can reproduce. It means very few characteristics are there which can define the life.
तो living organism can only be differentiated on the basis of self-sustained movement, मीन्स कि अपने आप खुद पे खुद उनके अंदर मूवमेंट हो रहा है. एंड वी कैन नॉट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ह्यूमन सेंसेस दैट मूवमेंट. कोई ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन को वो मूवमेंट समझ में आए, ह्यूमन को समझ में आए वो मूवमेंट, बिकॉज दैट मूवमेंट मे बी विजिबल एंड मे नॉट बी विजिबल. अगर हम दूर खड़े हैं एक सोते हुए आदमी को, तो हम दूर से उसको नहीं देख के बता सकते हैं कि इज ही लिविंग और नॉन लिविंग. ओके, यस, इफ ही रेस्पॉन्स द चेंजेस, अगर हम ऐसा ऑब्जर्व करते कि वो रेस्पॉन्स कर रहा है चेंजेस को, देन वी कैन से कि ही इज लिविंग. एंड इफ यू टॉक अबाउट द कॉमा पर्सन ही इवन नॉट रेस्पॉन्स द डे नाइट और एनी साउंड, मे बी मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमा इज देयर. तो कॉमा पर्सन अगर वो साउंड को रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, अपने आसपास के चेंजेस को रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो क्या हम कहेंगे कि इज ही लिविंग और नॉन लिविंग? ऑफ कोर्स ही इज लिविंग, बिकॉज ही इज रेस्पॉन्डिंग दैट chemicals, that medicines that are given to that person for recovery. तो कॉमा पर्सन अपने मेडिसिन को रेस्पॉन्स कर रहा है, सो ही इज लिविंग. तो रेस्पॉन्स इज अ इम्पॉर्टेंट फेनोमेनन टू डिफाइन द पर्सन इज लिविंग. मीन्स अगर वो मेडिसिन को भी रेस्पॉन्स कर रहा है, मीन्स कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग इनसाइड इट्स बॉडी. तो हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होता है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होता. ओके, नाउ द वायरस इज द एक्सेप्शन वन. इट इज एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिकॉज इफ इट फाइंड्स अ लिविंग ऑब्जेक्ट, then it become living, and that living object is the host cell. अगर इसको होस्ट का सेल मिल जाता है तो ये लिविंग हो जाता है, अदरवाइज ये नॉन लिविंग रहता है. ओके, नाउ हाउ कैन वी डिफाइन द लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस, दीज आर द फंक्शंस ऑफ लिविंग बींग्स. हमने पढ़ा कि लिविंग बींग्स में लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक होती है. तो लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट फंक्शंस उसके अंदर होते हैं. तो लाइफ प्रोसेसेस वही फंक्शंस हैं. प्रोसेसेस मैंने आपको बताया, दैट इज द सीरीज ऑफ एक्शंस. तो लाइफ में बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं, और वी कैन से द फंक्शन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल. एक लिविंग बीइंग के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. तो उन सारे फंक्शंस को हम लाइफ प्रोसेसेस कह रहे हैं, और इसको हम मेंटेनेंस प्रोसेसेस भी कहते हैं, क्योंकि लाइफ को वो मेंटेन रख रहा है. ओके, तो देर आर 7 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस. फर्स्ट वन इज द मूवमेंट. तो इट मे बी विजिबल एंड इनविजिबल, क्योंकि प्लांट्स है दैट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, and it can grow its branches, but for instant we see we cannot find any movement in that. So it may be visible or not visible. Growth, living things can grow till it mature. तो जब तक लिविंग बीइंग मैच्योर नहीं होता तब तक वो ग्रो करता है. मीन्स लिमिटेड टाइम ग्रोथ इज देयर, टाइम ऑफ ग्रोथ इज देयर. अनदर वन इज द सेंसिटिविटी. अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रेस्पॉन्स टू स्टिमुली. स्टिमुली मीन्स चेंज इन द एनवायरनमेंट. उसके अंदर, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उसको अगर एक ऑर्गेनिज्म सेंस कर रहा है, मीन्स ही इज लिविंग. चेंजेस लाइक हीट, साउंड, टच, केमिकल्स, तो that then we can say that he is living. Another characteristic of living being is respiration. It can take food and break down it into simpler form and derive energy. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स लेता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, और उससे जो एनर्जी निकलती है उसको वो यूज़ करता है फॉर बॉडी मशीनरी. बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं उनको मेंटेन करने के लिए, उनको चलाने के लिए, रिपेयर करने के लिए. तो रेस्पिरेशन इज द इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस. अनदर वन इज द न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन एज आई सेड, इनटेक ऑफ फूड, फूड को लेना फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ, दैट इज न्यूट्रिशन. अनदर वन इज द एक्सक्रीशन. वट एवर बॉडी processes taking place inside the body, many processes are taking place like respiration, nutrition,
and other chemical reactions are going on. So by these chemical reaction, that is called biochemical reactions, और उसको हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं. तो these metabolism results in formation of byproducts. ये मेटाबॉलिज्म होते हैं तो बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट हैं. तो दैट इज कॉल्ड टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट. तो वो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट इफ इट रिमेन इन द बॉडी, इफ इट कैन नॉट बी excreted from the body, then what happen? It become poisonous to our body and our body die. So it is necessary to throw out that toxic waste material out of the body. Okay, so excretion is the important phenomenon inside our body. And the last one is the reproduction. Reproduction means to reproduce, to produce of its own kind. इसमें ऑर्गेनिज्म बर्थ देता है इट्स ओन काइंड को. नॉट नेसेसरी इट कैन ले एग्स, बट when the lay eggs hatches, it has the same kind of organism from which it came out. So organism दो तरह के होते हैं, oviparous and viviparous. Viviparous can give birth to its own kind and oviparous lay eggs for its own kind. Okay, so these are the life processes that occurring in our body, and then in next session we will discuss about the life process that is very important, that is nutrition. Okay children, thank you. I think you liked it. If you liked it, please subscribe it for getting my service in future. Thank you children.